हेलो एवरीवन। आज की जो मेरी टॉक है इट्स अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट आई वुड से कि माय मिशन इन लाइफ परहैप्स कि आई एम टीचिंग सिंस 20 इयर्स और बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे आई मीन ऑन यूनिवर्सिटी लेवल, ऑन स्कूल लेवल, ऑन हाई स्कूल लेवल आई एम टीचिंग प्रोग्रामिंग. Okay, so today we're going to talk about understanding uh, challenges novices face and how teaching must be changed. So this is what I was going to talk about. All right. So this is me. I'm the CEO of Seed Programming. Seed Programming is my initiative. It's like 5 years now, and the main theme is uh, to seed in children and at university level programming, how to code, how to think, how to learn fundamentals of computer science. So that's the main theme I have in mind. So this is my team. Okay, so and there are several moments which have like we do teaching at university level, where we teach programming, cracking the coding interviews, like stuff, and then teaching children robotics, teaching children Scratch programming, uh, teaching even undergrad students about interviews and so on and so forth. Okay, so let's come to the talk. Acha, ab let's talk about novices. So novices mein there are like three main groups I want to talk about. So one is, what about primary school? So primary school level pe, when we are talking about that बच्चे जब सीखने के लिए आते हैं, and then there are high school level, and then there are undergrad level. Okay, so the prime focus of today's talk will be on undergrad students. Okay, and I was going to just touch on high school and primary school. Okay, all right. So undergrad students, there's a very sad situation worldwide as well. Okay, there is a 30% to 50% dropout rate overall worldwide. Okay, they join for computer science, but then they leave. Okay, so in Pakistan, the situation is very bad. We are not, if we don't talk about the dropout rate, the unfortunate situation is that there are only 5% to 10% people who are actually employable. Okay, that's the main issue. Okay, so, and one of the core issue is that uh, all software houses of Pakistan actually are saying that we have jobs, we want to acquire more people, but the issue is that they are not employable. Okay, so what is it which is centrally missing? Okay, so let me talk about so there are teachers, and then there are students, and there's a gap between them. Okay, and teacher usually follow some instructional design, and students have learning challenges. Okay, and then there is a gap, and what the talk is all about is bridging this gap. Okay, all right. So the first thing I want to talk about. Okay, so students, when the students come, हम usually बच्चों को students को what we try to do is we teach them what is sequential learning. What we teach them is sequential learning. Okay, so sequential learning mein the two pedagogy which usually people talk about is, okay, there is a program which we want to write, and then there is an on paper approach. So what we do is कि हम सब कुछ paper पे देखें कि paper पे how program is executing. Okay, so this is, कुछ लोग कहते हैं कि हम सब unplug approach करके what we do is pseudocode. We're going to talk about pseudocode, and we're going to do हम उनको ड्राई रन करवाएंगे, हम उन्हें प्रोग्राम्स विल गोइंग टू सी के कैसे जो है वो लॉजिकली थिंक किया जाता है ओनली ऑन पेपर. एंड देन देयर इज वन अप्रोच व्हिच इज अ ह्यूज डिबेट कि भाई पहले आप उसको आउटपुट दिखाएं, प्रोग्राम पे डायरेक्ट लेके जाएं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So there is a program, and then there's on paper approach of dry run, and then there's a debugger. And what I'm calling here debugger specifically is कि step by step execution. कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है. सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपके सामने नजर आ रही है कि हमने 3 कोर्सेज के इनपुट लिए और इनके मार्क्स हैं. व्हाट वी ट्राई टू कंप्यूट इज
कि हमने उसके टोटल मार्क्स कंप्यूट करने, उसकी परसेंटेज के ऊपर उसको ग्रेड असाइन करना। ओके, सो द थिंग इज वन अप्रोच इज कि इसी को हम ड्राई रन करके दिखाएं। और ड्राई रन कैसे करके दिखाएं? वन अप्रोच इज व्हिच इज एक्चुअली गोइंग ऑन बोथ साइड। एक है ऑन पेपर, हम कहते हैं कि ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, और जब ये हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये एवरेज कंप्यूट हो जाएगी, और जब व्हेन अब ये प्रिंट करेंगे तो कंसोल पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, एंड हियर व्हाट वी आर सीइंग इज कि सब कुछ यहां पर मुझे डिबगर पे नजर आ रहा है। ओके, एक्चुअली I call it step by step execution. I don't call it debugger, because what I want is कि as a teacher students को ये बात कभी समझ नहीं आती शुरू में। जब शुरू में जब they are beginners, उनको on paper अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा, that has to be shown. And I'm saying कि इस पेपर को साथ साथ लेके चले। I'm not saying don't take it along. I'm just saying कि go through this path. First show कि ये कैसे प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाएं और देखें किस तरह, और फिर पेपर पे भी करवाएं। What I'm saying is, तकरीबन जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं हम प्रोग्रामिंग के, ऑल इफ कंडीशन, व्हाइल, फॉर लूप, फंक्शन में कॉल होना, ऑल दीज थिंग्स, उनको पहले बताएं कि फॉर एग्जांपल उनके अंदर एग्जीक्यूशन होती कैसे, यानी कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, कैसे व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। शोइंग देम ऑन पेपर इज शुड बी ए सप्लीमेंट इन द बिगिनिंग। फर्स्ट यू मस्ट शो देम। अगर आप उसे शो नहीं करते तो उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनती। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो इस पे बहुत स्ट्रगल करते हैं। आई हैव फेस्ड इट, ठीक है, आई एम सीइंग इट, एंड और वंस दे सी इट दे कैन नॉट अनसी, ठीक है। नाउ इट्स लाइक यू नो इनके दरमियान में मेंटल पिक्चर दिमाग में बनना शुरू हो गई। ओके, ऑलराइट, सो अच्छा, now let me talk about further. I will going to touch few of the topics, very few of the topics, जिसमें I will going to say कि कैसे बच्चे struggle करते हैं, how students struggle, okay, at so much deeper level, in a sense कि वो छोटे-छोटे concepts हैं, but how deeply they are engaging और वो बच्चे struggle कर रहे होते हैं। Okay, so let me talk about control structure difficulty. So let's see कि I mean, आमतौर पे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और फिर स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं। ओके, सो आई मीन एक तो पहली बुरी बात है कि इफ कहाँ लगाना है, इफ देन एल्स कहाँ लगाना है, स्विच कहाँ लगाना है। लेट्स से ये बच्चों ने अगर सीख भी लिया, सो वन ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव सीन, सो बाय द वे कंपाउंड स्टेटमेंट में बच्चों को करवाते हैं जिसमें है कि अगर एक इफ के अंदर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, वी वांट टू पुट मल्टीपल कंडीशंस, तो हम उनको एंड के थ्रू जोड़ सकते हैं, और के थ्रू जोड़ सकते हैं, नॉट के थ्रू जोड़ सकते हैं। ओके, लुक एट दिस, so let me tell one challenge which I have seen so many children facing कि क्या और मसला कहाँ पर। और so here's a very simple example which I have done like this week with children कि एक आपके बैंक में कोई बैलेंस है और you are going to some country, okay, so either you have visa of US, India and Iran, so the question is यहाँ पर ये इनपुट करता है सबसे पाइथन को, वो इनपुट और वो कहता है कि अगर मेरा कंट्री यूएस है तो मेरा वहां पर बैंक बैलेंस कितना होगा, सो इट्स लाइक कन्वर्जन, एंड देन इंडिया में जो वैल्यू आई है उसमें से बैलेंस से मल्टीप्लाई किया 0.3, एंड देन ईरान एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी पुट हियर। ओके, सो द सिंपल कंडीशन इज सेइंग कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे और डालते हैं कि अगर वो यूएस एंटर किया है, इंडिया एंटर किया है या ईरान एंटर किया है तो ठीक है, वो से रिजल्ट दिखा देगा, अदरवाइज इट विल गोइंग टू से इट्स अ रॉन्ग एंट्री यू हैव एंटर्ड, रॉन्ग कंट्री यू हैव एंटर्ड। ओके, ऑलराइट जी, समझ। Yes, we can say that. I just want to say that usually students try to say कि पहले मैं check कर लेता हूँ, first I check and then I say कि okay, I will going to compute that. Okay, so now look at this. अब मैंने एक सवाल को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा कि व्हाट इफ के वो इनपुट गलत थे, अगर इनपुट गलत है तो उसे बार बार उस कंट्री को इनपुट करवाना चाहिए, ठीक है। सो डोंट गो अंटिल द यूजर एंटर्स द राइट इनपुट ऑफ द कंट्री। ओके, अच्छा, सो यूजुअली गिवन के उन्होंने ये कंडीशन लगा ली हुई है कि और अगर कंट्री यूएस है और कंट्री
India or country Iran. Okay, so look at this. So what condition we should put here? Okay, so the first attempt which usually children make is this. Country is not equal to US, or country is not equal to India, country is not equal to Iran. Then wrong input, enter again. So if you enter Iran or let's say India, so because country is not US, due to short circuiting, it will come here and execute this. Okay, so this is wrong. Okay, what they do is कि जब भी compound statement students के आती है, so what they do is they hit and try. कि ये try कर लेते हैं, ये try कर लेते हैं, ये try कर लेते हैं, but they don't understand कि ये असल में यहाँ पर क्या चीज involved है. Okay, so the actual answer is कि आपने यहाँ पर and लगानी, ठीक है, which is actually saying this कि actually मैंने क्या करना है, ये मेरी condition थी, which is actually equivalent to this कि अगर country इनमें से कोई था तो मैं आगे चल रहा था. What I am actually looking for is the not of this. And what is not telling me, not when go inside, due to De Morgan law, it converts into and. Okay, so here lies a little deeper connection कि actually बच्चा चाहे तो इस तरह भी सोच सकता है और इस तरह भी सोच सकता है. So as a teacher, if you are just teaching them this, yeah, I mean and or, considering कि वो इसका ये जो De Morgan law connection है वो खुद बना लेगा, it's not fine. Okay, here mathematics comes into play and you have to build that connection कि actually ये दोनों statements equal है. और usually बच्चे करते क्या है कि when they have and or connected with not, तो problem ये होती है कि वो एक बच्चा दूसरे बच्चे का कोड देखता है और वो कहता है अच्छा इसने ये लिखा मैं भी वही लिख लेता हूँ, instead of seeing कि there are possibilities. और by the way ये कोड अगर आगे बहुत सारे उसमें conversion है तो there are lots of possibility कि इसने and से सोचा, इसने और से सोचा. So there I mean students को ये बताना कि there lies complexity, इसमें आपके पास openness है और हर बच्चा एक अलग तरीके से सोचेगा. Okay, this is a very important connection to build at the very beginning. Okay, I'm just telling कि कितनी deep छोटी-छोटी बातें हैं जिसको हम I mean assume कर लेते हैं as a teacher कि शायद ये बच्चों को पता होगा. Okay, all right, so let me talk about some more important stuff. So one of the key important thing I've seen is कि बच्चों को जब हम programming में loops पढ़ा रहे होते हैं, we don't make them discover loop. Okay, what do I mean by discover loop? So look at this, a very simple example कि I have 5 numbers and I'm looking for the maximum. Okay, so one way to do it is कि मैं 5 नंबर इनपुट करवाता हूँ और मैं कहता हूँ अगर n1 बड़ा है मतलब कि n1 is bigger than n2 and सब पे कंडीशन लगाऊं, फिर मैं दूसरे पे कंडीशन लगाऊं, तीसरे पे कंडीशन लगाऊं and so on so on. Okay, so making them realize that this is a very bad programming. Okay, yes, I mean you can actually do that. I mean इसी को आप by the way इसमें अगर आपने if लगाया तो actually इस if की जरूरत नहीं है because unique numbers हैं और n1 का आपने चेक कर लिया होगा तो अब आपको एक्चुअली n2 को यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं. So actually you go here. So if यहाँ पे आपके number of comparisons जो हैं वो और कम हो गए. Okay, and then what we talk about is this कि let's say कि why not we do this कि अब हम कहते हैं कि max को n1 assign कर देते हैं और फिर बारी-बारी नंबर को यहाँ पर max को अपडेट करते जाते हैं और इस पे ले आते हैं. Okay, and now look at this and then incrementally we go here कि अब हमें बेसिकली 5 वेरिएबल भी यूज नहीं करने, एक ही वेरिएबल बिकॉज वंस वी टेक तो बेसिकली यहां से आवाज ये इस चीज से इस चीज पे आना इज नॉट एन इजी टास्क. क्योंकि अगर यूजर यहाँ पे इनपुट करता है 5 नंबर्स तो 5 नंबर्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्वॉल्व है. 5 नंबर्स अगर यूजर इनपुट करता है तो और लेट्स से एक ही लाइन में कर देता है तो यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ पहला नंबर इनपुट होता है और अगले चारों नंबर्स जो है वो एक्चुअली बफर में पड़े रहते हैं. Okay, और वो बफर से इनपुट जो है वो actually will come out when you use the second CN. Okay, so and discovering from here that these 3 lines are being repeated 4 times. So here they discover that ये follow by. Okay, so making them discover these kinds of things कि जहां पर पहले उसको repeated code की तरफ लेके आना and then moving them into loop is perhaps very important. और कैसे इसको कन्वर्जन कराई जाती है, दिखाई जाती है
मुझे लगता है कि we should be very explicit in doing like several examples of this. जी. Yes, yes, you can. Okay, it's quite interesting. I mean, the right. अच्छा वैसे हम बाद में सवाल ले लें क्योंकि अगर 30 मिनट में खत्म करना है तो फिर सॉरी ठीक है हाँ ये वर्ड बात क्योंकि there are lots of things I would like take तो चलो जी so nested control so the thing is अच्छा and another important thing what we talk about is कि मैंने देखा कि बच्चों को हम आमतौर पे we talk about loops और I mean loops में हमने usually हम nested loop करा देते हैं if के अंदर एक बात कर देते हैं but explicitly telling कि all these kinds of nestings are possible if के अंदर if हो सकता है if के अंदर if then else हो सकता है if के अंदर for हो सकता है for के अंदर if हो सकता है all these things explicitly told and creating examples within class and outside class to enforce this और specifically बताना कि इसकी कोई भी variations होती है that's very important okay and that is not sometime easy and I will going to show you one example okay look at this one example and its complications which I have seen in like 20 years कि कैसे कैसे बच्चों ने इवन उसको परसीव किया एंड व्हाई आई एम सेइंग कि हम आमतौर पर ये लेबल कर देते हैं कि ये बच्चे को नेस्ट एक फॉर के अंदर एक इफ लगाना नहीं आ रहा ठीक है सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल सो यू हैव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड आई रियली वांट यू टू रीड this statement so n is a composite number if it is divided by by any number between 2 and n minus 1 okay इनके दरमियान में कोई भी एक नंबर है जो इस कंपोजिट नंबर को डिवाइड करता है and here is a very simple definition and what we write the code for is that there is a for loop which is going from 2 to n minus 1 and here is a condition n mod d यानी इसका डिवीजन की चेक करते हैं अगर वो मिल जाता है हम for रिटर्न ट्रू कर देते हैं ठीक है okay here comes the surprise इसी डेफिनेशन को मैं अगले पे लेके जाता हूं प्राइम नंबर ओके सो इन प्राइम नंबर the same line n is a prime number if it is not divisible by any number between 2 and n minus 1 okay अच्छा ये है not divisible the very first thing children do students do is कि वो इस जगह पे नॉट लगा देते ओके वो कहते हैं ठीक है अगर वो डिवीजन नहीं होती तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा ठीक है ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गई यहाँ पर ट्रू होना चाहिए सो इफ इट इज नॉट डिविजिबल तो रिटर्न ट्रू कर देगा और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देगा ओके सो दिस इज जस्ट वन इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज रॉन्ग हियर ओके सो द रॉन्ग थिंग इज के ये नहीं चलता ओके सो व्हाई दिस कि अगर वो डिविजिबल अब मैं डेफिनेशन में कह रहा हूं नॉट डिविजिबल एंड यहां पे व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज समथिंग व्हिच इज डिविजिबल व्हाट इज गोइंग ऑन एंड फॉर ए स्टूडेंट जो कि शुरू में अब फॉर के अंदर पहली दफा इफ लगाना सीख रहा है उसके लिए दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि डेफिनेशन तो बिल्कुल वही है कि मैंने बस नॉट किया है ओके व्हाट्स गोइंग ऑन सो मेकिंग दिस रियलाइज कि एक्चुअली यहां पर अगर हम देखें तो ये देयर एग्जिस्ट की डेफिनेशन और देयर एग्जिस्ट में का जब मैं नॉट लेता हूं दिस कन्वर्ट्स इनटू फॉर ऑल एंड फॉर ऑल मींस यहां पर क्या मतलब है यहां पर मतलब ये है कि यहां पर अगर वो एक पे भी सो बेसिकली एक पे भी वो डिवाइड अगर वो डिवाइड नहीं हो एक से वो डिवाइड नहीं होता यानी अगर वैसी स्टेटमेंट में सॉरी अबाउट दिस कि यहां पर लेट्स से यहां पे फॉल्स नहीं लिखा हुआ यहां पे ट्रू लिखा हुआ है तो यहां पर अगर एक से वो डिवाइड नहीं होता वो तो रिटर्न ट्रू कर देगा व्हाट डज दिस इंप्लाई इट इंप्लाइज उसको एक्चुअली नहीं पता कि रिटर्न का मतलब है कि फंक्शन से बाहर निकल जाना वो तो पहला ही इफ नॉट इक्वल टू चेक करके बाहर निकल जाएगा ओके सो these simple things are not simple for novices okay so the thing is what's going on now let me show you another complexity okay so one thing so the thing is making them realize that if we are looking for their exist so if there is something like their exist condition we are looking for the proof okay and there one proof is enough and if there is for all that in that case what we are looking for is the counter example okay and that's why just one condition is enough and that one condition should be of the counter example which means agar main not ke liye search kar raha hu to mujhe wahan pe equality ke liye search karna okay that's why that twist is important and I'm saying this thing is not easy for students to understand especially novices and especially those who are coming from different backgrounds
Okay, Sumit, you want to say something? Once again, the confusion is evolving. Yes. Okay. I'm just saying that one concept can come in so many ways to haunt them. Okay, if these connections are not built. Okay, so just look at this. One of the things which I've seen, and I was like really, I mean, traumatized that how it is happening. Oh, this happened in Namal. Okay, and one of the student was, and by the way, the moment I made this clear to that kid, things got changed altogether. Okay, he wrote this and he said why it is wrong. Okay, and I said, okay, so what he's saying is, if it is divisible, return false. Okay, otherwise return true. Okay, and look what he said. He said, for all values of d here, this if will execute it first. Okay, and if it is not divisible, I will go here. Okay, so what does this mean? उसको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली प्रोग्राम फ्लो वर्क्स लाइक कि पहले वो पूरा इफ एग्जीक्यूट करता है, फिर वो वापस आता है, फिर वो वापस आता है, और अगर पहले इफ पे ही हमने चेक कर लिया और वो इस केस में चला गया तो वो तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा. ओके, सो लुक एट द कॉम्प्लेक्स, आई मीन लिटिल थिंग, बट ही सेड कि ये तो मेरी मैथमेटिकल डेफिनेशन को पूरा पूरा फिल करता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस आई एम सर्चिंग फॉर दिस, इफ इट इज नॉट दिस आई विल गो देयर. ओके, ओके, look at another very haunting thing. Look at this. अच्छा, अगर मैं इसको टेस्ट करूं, इस पीस ऑफ कोड को टेस्ट करूं, जस्ट लुक एट इट. 2 पे टेस्ट किया, रिटर्न ट्रू हुआ. 3 पे टेस्ट किया, रिटर्न ट्रू हुआ. 4 पे रिटर्न फॉल्स हुआ. 5 पे रिटर्न ट्रू हुआ. 6 पे रिटर्न फॉल्स हुआ. 7 पे रिटर्न फॉल्स हुआ. 8 पे रिटर्न फॉल्स हुआ. सॉरी, 7 पे रिटर्न फॉल्स ट्रू हुआ. 8 पे रिटर्न फॉल्स हुआ. फर्स्ट एग्जाम्पल जहां पर जाके फेल होता है वो 9 है, और वो पहले कुछ एग्जाम्पल चेक करता है, मेरा कोड तो ठीक है, माय कोड इज ऑल राइट. ओके, आई मीन व्हाई आई एम सेइंग कि इस जगह पर आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करें. आई मीन मेक समथिंग लाइक हैकर रैंक पे जैसे बनाई जाती है सबमिशन, जिसमें आई मीन दे आर फ्री. आप यहाँ पर एक बेसिकली क्या करें, उनमें टेस्ट केसेस अपने जो भी असाइनमेंट वगैरह आप दे रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें टेस्ट केसेस आप डालकर उनको दें ताकि वो वहीं पर अपने दिमाग को ठीक कर ले. ये इसकी एवोल्यूशन 2 हफ्ते बाद होती है, और 2 हफ्ते दैट गाय सफर्स बिकॉज फॉर हिम दिस इज करेक्ट, एंड 2 हफ्ते बाद उसे पता लगता है ये कोड तो गलत है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब वो उसी वक्त कोड कर रहा था, उसी वक्त पे उसको ये चीज कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग जहां पर उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाए, सो प्रेशियस. ओके, ओके, आई हैव जस्ट शोन यू इफ फॉर. Okay, I'm just telling you that there are so many difficulties and challenges जिनकी बारीकियों में देखने की जरूरत है. Okay, I've seen so many people. ये पिछले 2 हफ्ते में जितना टाइम मैंने स्पेन लगाया just to look at it कि कैसे लोगों ने even teaching students के ऊपर बात की हुई है, novices के ऊपर. To my surprise, they were not talking about inside detail. वो कहते हैं ये फेल हो जाते हैं, ये नहीं होता, ये लूप में लोग स्ट्रगल करते हैं. अबे why they struggle? Go deeper, see inside के क्या हो रहा है. Okay, and now I mean as a pedagogical details are I mean usually they are educationists and they don't look into details unfortunately कि कैसे inner details देखी जाती है. Okay, so I just want to show you कि इसी तरह जैसे there are lots of details here and I want to just show कि even ये जो concepts हैं, इन concepts में कितने level details हैं. So I'm just showing you कि single dimension array, हम आमतौर पर कहते हैं single dimension array है, और ये देखें जी, मैंने आपको बताना कि कितनी लेवल डिटेल है जो पाई जाती है. दिस इज द कांसेप्ट मैप ऑफ सिंगल डायमेंशनल अरे. हाउ कैन आई मूव हियर? ओके, कैन एनीबॉडी डू दैट? मेरे हाथ गीले थे, चल नहीं रहा, सॉरी अबाउट दिस. कैन आई? आपने भी ऐसे कर दिया. सो एक मिनट का. सो द थिंग इज, लुक एट दिस. ये सिंगल डायमेंशनल अरे, लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी कि ये इसके कॉन्सेप्चुअल लेवल डिटेल है. क्या है? हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम आमतौर पे ये करते हैं कि ये अरे, ये इसका कॉन्सेप्चुअल मैप है. हम कहते हैं जी, इससे पहले उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताई, विच इज एक कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है, कंटिगुअस ब्लॉक. ठीक है, और ये इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, इस तरह से ये इनिशियलाइज होती है.
ठीक है। इसकी सेवरल टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहें तो इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको फाइल से रीड कर सकते हैं, हम चाहे तो ये यूजर से इनपुट ले सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन वी टॉक अबाउट, ओके। और आई मीन यूजुअली हम इसको इस तरह से सारी इसकी इनिशियलाइजेशंस की बात करते हैं, ठीक है। और एंड वी मूव फॉरवर्ड, ओके। और प्रॉब्लम्स लेवल पे, आई मीन सिमिलरली प्रॉब्लम लेवल पे हम अगर अब सिंगल डायमेंशन अरे की जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो हम या यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में व्हाट वी टॉक अबाउट इज कि हमने सर्चिंग करा दी, ठीक है, हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज बेस्ड काम करवा दिया या समथिंग लाइक दैट। आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग कि एवरी सिंगल डिटेल इज इंपॉर्टेंट। एक सिंगल डायमेंशन अरे के अंदर जो है आपके इतने सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सेट्स हैं जिनके ऊपर काम करवाने की जरूरत है। एंड अज्यूमिंग कि एक फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक, आई मीन अगर मैं सेग्रीगेशन की बात करूं तो सेग्रीगेशन में देयर आर सेवरल अप्रोचेस कि आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा अरे करके भी कर सकते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर आर सेवरल अप्रोचेस टू टॉक अबाउट। सो ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर, हम आमतौर पर कहते हैं कि हम अरे करवा दी, उसे इंडेक्सिंग करवा दी, और बच्चों को ये दिखाना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर बच्चे एक जाके देखते हैं अरे की प्रैक्टिस करनी है, व्हाट वी डू इज कि बच्चे बच्चे कहते हैं सबसे छोटी वीडियो जाके यूट्यूब पे देखते हैं, वो भी 2x पे चलाकर, एंड दे सी के ओ भाई अरे हो गई हमारी, ठीक है ना। आई मीन दे डोंट सी के ऑल दीज conceptual connections are important for I mean for problem solving. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये कनेक्शंस आपने नहीं बनाए तो you are destined to do. Okay, all right, so all right, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, I believe कि once you are done with all the constructs, आपने लूप करा दिया, आपने फंक्शंस करा दिए, आपने all these things अगर आपने कर लिए, okay, so the thing is, the most precious part is that teach them how to make a bigger project. Okay, what do I mean by bigger project is, for example, आप बच्चों को पहली दफा कोई बड़ा गेम बनाकर दिखाएं। Okay, let's say गोमू को बना रहे हैं, गेम ऑफ लाइफ बना रहे हैं, स्नेक्स एंड लेडर गेम बना रहे हैं, उनके प्लॉट्स बनाएं कि वो कैसे बनाए जाते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट कि आप उनको सिखाएं कि डिवाइड एंड कंकर क्या होता है। ओके, डिवाइड एंड कंकर हियर मींस कि एक बड़े प्रॉब्लम को कैसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, आई मीन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, all right, so now let me show you, I mean I'm done with the undergrad parts, which is like 90% of the presentation. I'm just telling you one more complexity which is important. अब हम लेट्स से कि मैंने लेट मी शो यू कि एन एग्जांपल जिसमें आई विल गोइंग टू से टेल के वो चीज जो अंडरग्रेड पे चलती है वो जाकर हाई स्कूल के बच्चों को वही चीज सिखाने की कोशिश करें, इट कैन फॉल अपार्ट। लुक एट दिस, ये एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है जो मैंने दिखाई है कि ये एक सिंपल ये डायमंड है जो आई मीन पिरामिड है जो मैंने प्रिंट करना। ओके, और इसको हम यूजुअली जैसे इंटरप्रेट करवाते हैं कि ये मैंने पिरामिड प्रिंट करना है, इसकी हाइट इनपुट लेंगे और हम कहेंगे भाई इसमें क्या होना है, हर लाइन पे क्या होना है, 2 काम होने, स्पेसेस आनी है और स्टार्स आने। ठीक है, सो बच्चों को ये अंडरग्रेड के बच्चों को ये समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि हर लाइन में मैं कर क्या रहा हूं। इन एवरी लाइन आई एम डूइंग प्रिंटिंग स्पेस फॉलोड बाय प्रिंटिंग स्टार। ओके, ऑलराइट, और यहां पर ऑल द यूजर हैज टू फिगर आउट इज के स्पेस पहली लाइन पर h-1 स्पेसेस हैं और अगली पे h-2, h-3, so the pattern is h-ln. ओके, स्टार में क्या सीन है, और यही बाय द वे यहां पर आ जाता है। ओके, और स्टार में क्या है, स्टार में पहली दफा 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 1 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, and it's actually odd number 2 multiplied by n ln-1 which comes here. Okay, so teaching them usually हम nested loop इस तरह सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसके थ्रू हम बहुत सारी शेप्स बनवाते हैं कि उसे पता लग जाए ये चीजें। अच्छा, बाय द वे सेम थिंग अब अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को आराम से कर लेता, बट व्हाट वी फिगर्ड आउट इज कि यही हाई स्कूल पे करते हुए बच्चे फॉल अपार्ट बिकॉज उनका अभी तक अलजेब्रा का माइंड नहीं बना हुआ, यानी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की इस तरह की इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, दे डिड नॉट फिगर दैट आउट। एंड व्हाट वी डिड वाज, आई मीन आई टॉट दिस टू एपी स्टूडेंट्स एंड कुछ बच्चे हमारे वहां पर आए हुए थे आर टावर में, तो आई वाज मिजरेबली फेल कि ये बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, एंड आई रियलाइज ये बच्चे कर नहीं पा रहे।
And what we discovered is we discovered a new method, okay, which is like very known to you. I mean, it's very obvious, but it's clean to see. Okay, what all you have to do is figure out कि पहली line पे pattern क्या है. So first look at what's the pattern starting from. So on the first line, the pattern starting, space starting from h minus 1, and this is starting from 1. Okay, and all I have to look at is कि दूसरे step में, हर step में change कितनी हो रही, which I call it a calculus method. Okay, so all I have to look at is कि how much change is happening. So space is decreasing by 1 and stars are increasing by 2. Okay, and look at this. So the thing is, all you have to do is ये जो decrement वाला काम है वो यहां करना है, और जो start वाला काम है वो हमें initialization step पे करना है, और जो अंदर वाले loop लगे हुए हैं वो उनकी actually bound के ऊपर लगे हुए हैं. Okay, so पहली दफा इतने and so on. Okay, all right. Another daunting task. So even if you go further down, अगर आप primary school की बात करें, so there we usually use Scratch to teach students. Okay, और उसमें things get horribly difficult. Why? Because वो बच्चे हैं जिन्होंने addition को इस तरह perceive किया हुआ है, subtraction को ऐसे perceive किया हुआ है कि going in the forward direction. But उन बच्चों को जो negative numbers का वो नहीं पता, यानी वो नेगेटिव भी करते हैं तो उसको वो जीरो से आगे पीछे नहीं जाते, तो उन बच्चों को ये परसीव करवाना कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, फिर नेगेटिव, क्योंकि स्क्रैच में सारी चीज जो आउटपुट आ रही होती है वो दैट आउटपुट इज इन 2 डायमेंशन. सो मेकिंग देम रियलाइज कि एक्चुअली तो ये इसी की 2 इंटरप्रिटेशंस हो सकती है कि नेगेटिव यहां भी हो सकता है, नेगेटिव यहां भी हो सकता है. ओके, सो मेकिंग देम परसीव दैट. ओके, आई मीन दिस इज द लेआउट जिसके अंदर काम कर रहे हो. अब ना इमेजिन कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम ये प्रोग्रामिंग की चीजें सिखा रहे हैं, एंड वी से व्हाट अबाउट डायरेक्शन, और डायरेक्शन करके अपने स्प्राइट को उधर भी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हो सकती है. सो लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी की, छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे डीप डाउन उनको साथ कनेक्शन बनाए जाते हैं. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम यूजुअली बच्चों को जब टीच करते हैं तो ये हम टर्टल ग्राफिक्स से टीच करते हैं. एंड टर्टल ग्राफिक्स में जो मजे की बात है वो ये कि एवरी सिंगल थिंग इज डन सीक्वेंशियली, कि ये एक बेसिकली एक स्प्राइट है जो यहां से उठ के आएगा, यहां से जाएगा, पेन यहां से डाउन करेगा. एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन इज डन बाय वन, कोई लूप इन्वॉल्व नहीं. उनको सिखाना कि पहले ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, वहां जाना है, जाके पेन डाउन करना है, फिर पेन उठाना है. एवरीथिंग एल्गोरिथम इज एक्चुअली टॉट टू देम, जो कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है. ओके, तो यहां से हम बेसिकली इसको लेके आते हैं. ओके, तो दीज आर द मोमेंट्स जो कि हमने दिखाए हुए हैं. अच्छा, एक छोटी सी लास्ट स्लाइड पर बात करेंगे, गुड प्रैक्टिसेस फॉर टीचर. आई मीन आई बिलीव दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी प्रैक्टिसेस है जो कि मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्रामिंग के टीचर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए. ओके, डू लाइव कोडिंग. लाइव कोडिंग के कुछ एडवांटेज भी हैं, लाइव कोडिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. लाइव कोडिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बेसिकली यू हैव द लिबर्टी कि एक तो एक्चुअली you should inspire the students. Okay, you must inspire the students. कैसे प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको कैसे उस पर अटैक किया जाता है. हम आमतौर पे बोर्ड पे करके दिखा देते हैं, इट हैज लॉट्स ऑफ एरर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो लेकिन हम उसको कभी भी आई मीन कैसे बोर्ड पे हम आमतौर पे रफ अमल में करवा देते हैं, बट द थिंग इज के लाइव कोड करवाना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. उसको वाकई में दिखाना कि ये देखें ये आउटपुट आप साथ आए. You must show dry run of codes. One of the most important part is कि हमारे अंदर जो 90% से ज्यादा टाइम जो बच्चों का लगता है ना, जो नोविसेस हैं और इवन जो बड़े, उनका 90% टाइम एरर फिक्सिंग में लगता है. और एरर्स भी 2 तरह के. नोविसेस का बहुत ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन टाइम होता है वो सिंटैक्स एरर का होता है, और जो आपके अब थोड़े से आगे चले जाते हैं तो देन दे गो इनटू लॉजिकल एरर्स. और लॉजिकल एरर्स आर यूजुअली आई मीन दे आर वेरी पेनफुल. आई मीन अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया, इन दैट केस पेपर वाली अप्रोच विल नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैंने चेस लिखी हुई है, चेस का कोड 1000 लाइन ऑफ का कोड है, और उसका आपको अभी पता लगा ये मेरा चेक एम ही देना शुरू हो गया. ओके, व्हिच हैपेंड टू मी. अभी जब मैं वैल्यूएशन मुझे शुरू याद है 2001 में दे रहा था, तो और एंड इफ आई डिडंट नो अबाउट डिबगिंग कि मेरे एक्चुअली हॉर्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम है. ओके, सो रियलाइज कि किस मेरे फंक्शन ने गलत आउटपुट दिए, अगर वो डिबगिंग के थ्रू के अलावा पता करना इम्पॉसिबल.
Okay, so introduce logical errors, introduce, do in front of them के कैसे logical error देखे जाते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हम आमतौर पे जब हम इवन लाइव कोडिंग भी कर रहे होते हैं तो हमारी जो विंडोज होती है ना, जो डिबगिंग विंडोज होती हैं और ये उनके ना फॉन्ट बहुत छोटे होते हैं. तो इवन मैं इतनी क्लास की भी बात करूं, सो द थिंग इज कि दूसरी क्लास के बाद, दूसरी रो के बाद यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज इनसाइड रिटन वॉचेस में, आई मीन एरर लॉग में एंड सो ऑन सो फोर्थ. So make sure के those windows are well font. Okay, encourage participation. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप पहली दफा बच्चे क्लास में आते हैं, there is a heterogeneous group. आईसीएस के बच्चे हैं, साथ दूसरे बच्चे हैं, and the most daunting task is कि उन बच्चों को जो कि आईसीएस वाले हैं उन्हें खामोश कराना. I mean, you have to make sure कि they don't become bullies. Okay, उनको साथ मिलाना जो कि बेसिकली, और उनको encourage करना कि you have to participate, you will come up. Okay, उन्होंने भी बेसिक, और अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज कि मेरी क्लास में तो मैंने अपनी 20 साल के एक्सपीरियंस में जो सीखा है, तो अनफॉर्चुनेटली ऑल द आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द टॉप इज डन बाय बायोलॉजी स्टूडेंट. ओके, आई मीन एंड देन जो है एफएससी स्टूडेंट, एंड देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड देन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. व्हाई? बिकॉज दे नो द कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स बट दे डोंट नो कि कैसे बड़े प्रॉब्लम्स को पे अटैक किया जाता है. दे डोंट नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी दे नो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ये काम करते हैं. बट कारपेंट्री सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को जानने का नाम नहीं है. कारपेंट्री करने का नाम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का नाम. ओके, सो I mean, highlight and explain compiler errors, ensure code visibility. This is very, very important. Okay, actually, this is very, very important thing which I have just adopted last year. Okay, I ask students to bring problems, and I will going to do that in front of them. Okay, कि वो बच्चे कोई अपनी स्लाइड प्रॉब्लम लेके आए, और मैं, क्योंकि मैंने भी अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सो हमारे इतने बायसेस हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमने कहा यार ये तो ऐसे करना ही तो बड़ी ऑब्वियस बात है. बट समटाइम्स यू नो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल नई प्रॉब्लम लेके आए जो आपने भी नहीं देखी हुई, ताकि बच्चों को दिखाएं कि देखो इस तरह अटैक करता है. ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, आस्क, अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात है कि आस्क देम टू ब्रिंग कोड जिसमें लॉजिकल एरर्स, और मैं उन सबके सामने निकालूंगा. अच्छा, ये लॉजिकल एरर निकाले कैसे जाते हैं. ओके, सो डेडिकेटेड ऑफिस आवर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी की दुनिया. आखिरी बात है, ठीक है, चैट जीपीटी हैज कम एंड इट हैज रियली, अगर आपने, पहली बात तो ये कि अगर आप इस फंडामेंटल लेवल पे, आई एम सेइंग कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, चैट जीपीटी का आप अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, दे असाइनमेंट देंगे, आप जो भी टेक होम काम होगा दे विल गोइंग टू यूज चैट जीपीटी. ओके, चाहे आप जो मर्जी कर लें. अब वो मॉस सॉस चलाने वाला काम भी किया कि आप वही कोड किसी का दें, इसे कहें इसको दोबारा से लिख दे इस तरह के किसी से कि इससे बिल्कुल डिफरेंट लगे, जस्ट राइटिंग वन प्रॉम्प्ट इज इनफ. एंड यू मॉस आपका नहीं काम कर सकता. यू हैव टू डू evaluations, you have to do flipped classroom. And what do I mean by that is that every lab अगर आपने से काम करने को दिया है उसकी evaluation लाजमी, और evaluation में give them new task to do. Okay, something very similar to what you have given to assignments, because if you don't do that, okay, you will we are actually going in a very sad direction. Thank you. Live coding, यानी बच्चों को कहें आए कोड करें, वहीं पर बैठे कोड करें. ओके, थैंक यू सो मच. जी, क्वेश्चंस. To manage the workload, you know, there are a lot of things, there are a lot of topics. मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बहुत चीजें करवाऊँ, नहीं करवा पाता, और इस वे में करवाऊँ. So just in not being able to manage the workload, I'm not able to do that. So my question is about This is very, very, I mean, I agree that. Can you just repeat the question for the online audience? The question was that this outline which I have shown, which just in which we have one array concept and there are so many associated topics, how to cover all of them. And this is just programming fundamentals. Yes, this is only programming fundamental course, and but I've shown you the concept map was of just one instance,
and that one instance was single dimension array. Okay. Yes. So the thing is, I'm just saying that this, I agree, this is a difficult task. You will incrementally build on. Okay, it's a, I mean, whatever I have shown you is the same struggle I have faced as well. Slowly, slowly it build on. One Okay. suggestion. I think your team is very important. Yes, team is very, very important. TAs are very, very important, and Yes, so on. yes. Okay. Ji. Sir. Just one question, what you said made a lot of sense. I have some comments, which since we are already sorry, not just one question. Do you have any empirical evidence to support your argument? Yes. How can you repeat the question? So the thing is, the question is that do you have empirical evidence on whatever I have proposed? Okay. The only evidence I have is unfortunately that I have taught this for 20. This is just a personal experience. I'm not saying I've done that quantitative research or analytical. I mean some qualitative research on it. I've just seen it. I've interviewed lots of students, talked to them. I go to labs and I see them. That's just my personal experience I've shown. Okay. So I have two things I wanted to say, and I want you to tell me if I have understood you correctly. So you gave this example with the loops. Yes. Right, and then you did the ifs and then changed them, and then eventually went to the loop. So is the lesson from there is that you introduce one concept at a time and you change one variable at a time? Yes. Is Yeah. that That's. all right? And the second thing was about logical error. So there's something that I found important way to find logical errors in complicated code is what I do is when I have a program that's not working, I try to find the smallest example on which it fails. Yes. Beautiful. Beautiful. And that helps me. Yeah. I mean, and this is what we usually do. I mean, this is very important that you try to find the first example where it fails. Okay, that's why I'm saying that kind of hacker rank. I mean, softwares are important where I mean, usually this the easiest cases are the initial ones. In the first example where it fails, usually the first one where it fails. In the interest of time, many questions there, but a quick question if that's the case. Otherwise, because he'll be here. Yeah, you can talk to me. In the interest of time. इस तरह हम ऑनलाइन से भी एक पूछ लेते हैं. If there is anyone in online, if you want to say. जी, एक मिनट जी जी Professor Dr. जी. I'm been teaching since 2008. आपने जो बात की empirical वाली बात की actually जो आप बात कर रहे हैं जी. what we are trying to do we are want to sort it out that how should be how actually the program like आपने जो ये बात बहुत सारे issues हैं like where the your curricula is where your committees are what they are thinking about like आप कह रहे हैं ये कोर्सेज अभी आप ये साइबर और ये एआई और ये अभी जो लॉन्च हुए सेमेस्टर तक आपने जनरल कोर्सेज पढ़ा है. हाँ जी. where you are दूसरा सपोज अगर आप बाहर से फॉर एग्जांपल ये आपने मॉर्गन लॉ की बात actually this is taught by maths that teach at your department और वो अलाइन नहीं होते आपके कंप्यूटर साइंस के साथ. मैंने यूएस में काम किया फिर उसके बाद यूके में अभी रिसेंटली आई और चाइना में काम किया. अब यहाँ पे हमारे इतने इश्यूज हैं लाइक यू आर लाइक टाइट एंड यू डू नथिंग. Yes. आपने सिर्फ देखना है कि हाउ यू डू थिंग्स लाइक Yes. sorry to interrupt, but we have to keep the questions very brief, I'm afraid. Yeah. So the thing Sorry is, to interrupt. I got your point. The thing is, I believe this is the fight we have to fight. I mean, there are few things which we cannot do anything about. The thing is, what we can do is that in very little time, just explain what is De Morgan law and how their connections are. I mean, the in issue here is that students know what is De Morgan law. The issue is we don't build connections.
And building connections is important. I mean, I believe what is unfortunate here is that seeing in a different situation and that connection already there might not be easy. I mean, they might have known about De Morgan law, but seeing that this is actually De Morgan law may not be easy. So build that connection and then expect the same. Institutional policies जो भी है वो तो है। फकीर साहब आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे बात इनसे सवाल कीजिएगा। करें, वो change कैसे जी, लेके आए? so वकार साहब, over to you. I mean, if you want to ask question. जी, वकार साहब। Quick question. I'm paraphrasing. There was a comment. I'm paraphrasing a quick question. Okay, what are your thoughts on taking a bottom-up approach where you first teach hardware fundamentals, the architecture in something like Little Man Computer, and then you go up to scratch and keep making connections back to the assembly and the low-level hardware? I wish I have another life for that. Yeah. I mean, I don't know if, I mean, whatever I'm doing right now, I mean, I've now started now teaching robotics and I'm going there as well. So maybe after 5 years, I may be able to comment better on that. But now, right now, I'm just talking about how programming issues are being, struggled with students. So. Brilliant. Thank you very much.